Next, we will start with extraction of metal from its ore. First step, as we have already discussed, crushing and grinding of the ore. What we have to done is the ore which is obtained from the mining, clear? That can be in the form of big lumps. That lumps are to be broken into small pieces. So I can write here ore that is in the form of lumps. lumps मतलब छोटे छोटे पत्थर के फॉर्म्स में ऐसे, ठीक है. दैट इज broken into pieces. क्लियर. लम्प्स होंगे ओर्स के, उनको हम पीसेस में ब्रेक करेंगे और किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है. तो क्रशर हम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज जॉ क्रशर. with the help of crushers known as jaw crushers, and these pieces are then converted into fine powder. clear. क्रशिंग एंड ग्राइंड में सिंपल क्या करना है, जो भी लम्प्स या जो भी आपके ओर्स है दैट इज ग्राइंडेड और ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस फर्स्ट, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू द फाइन पाउडर. And this process is known as pulverization of ore. Pulverization of the ore. This term, definition of this can be asked. Pulverization of ore जो है that is the process of crushing and grinding of the ore to form it into a fine powder, that is known as pulverization of ore. So this is all in the first step. Now we have coming to the second step, and the second step is, and this is the main step and very important, many questions were asked from this in the exam, concentration of ore. क्लियर. सो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में हमने क्या करना है, जितनी भी इम्प्योरिटीज जो हमारी ओर के साथ हैं अटैच्ड, उन सभी इम्प्योरिटीज को हटाना है, ठीक है. तो अब सबसे पहले हम कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स में जो स्टेप है उससे पहले हम दो टर्म्स करेंगे, दैट इज गैंग. टू टर्म्स आर गैंग और मैट्रिक्स, ठीक है. एंड व्हाट इज दिस गैंग और मैट्रिक्स. जो हम ओर लेते हैं धरती में से, जो भी हम सारे मिनरल्स निकालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी और बहुत सारे, पता ही है, कोई भी चीज़ अगर आप कहीं से निकाल रहे हो अर्थ क्रस्ट में से, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सॉइल, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है एज अ इम्प्योरिटीज की तरह ओर के साथ होंगी. दैट ऑल इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स, ठीक है. व्हाट इज गैंग और मैट्रिक्स? वी कैन से द अर्थी इम्प्योरिटीज. अर्थली इम्प्योरिटीज मतलब द इम्प्योरिटीज, आप ऐसे लिख सकते हो, गैंग को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, the earthy and silica, ठीक है. Silicous comes from silica. The earthy and silica's impurities associated with the ore. Clear. All the impurities which are associated with the ore. What type of impurities? Earthy and silicous impurities, that are known as gang or matrix. Clear. And gang and matrix, and the removal of these impurities, removal of this gang or matrix, that is known as concentration of ore. उसको हम क्या बोलते हैं, removal of these impurities are known as concentration of ore. और यहाँ पर कई बार हम यूज कर सकते हैं ore dressing, the term ore dressing, और we can also use benefaction of ore. Clear. Now, so how we can remove these impurities? There are certain methods.
Clear? First one is we are having, I'm writing here, removal of gang, that is impurities. Removal of impurities. Clear? Or the impurities related to the ores, attached to the, associated with the ore. Clear? Now what we have to do is, certain methods are there. Clear? How we can remove the impurities, that depends upon the type of ore, कि आपने ore कौन से metal का ore लिया है, कैसी आपकी impurities है, उन impurities पे depend करेगा कि आप कौन सा method उसमें लगाओगे. First method is gravity separation. This is first method. Second one is froth flotation. Froth flotation process. Third is your magnetic separation. Magnetic separation. And fourth one is your, fourth one is leaching. These are the methods for the removal of the impurities from the ore. Gravity separation, froth flotation process, all these are very important from the examination point of view. So first we will discuss about gravity separation. What is gravity separation? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ग्रेविटी सेपरेशन का है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ, जैसे घर में हम जो चावल होते हैं, चावल को जब हम वॉश करते हैं या चावल में जब हम पानी ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, चावल में जो हस्क होती है, तिनका जो होता है, वो ऊपर आ जाता है और चावल नीचे बैठ जाता है. इट मीन्स जो हैवी आपके जो चावल हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज लाइटर है लाइक हस्क, ठीक है, वो क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है ना, पानी के ऊपर आ जाता है. तो वही आपका है ग्रेविटी सेपरेशन. Clear? This is the process of concentration of ore in which the impurities are lighter. Clear? जो impurities है they are lighter than the ore. So impurities जो है वो क्या होगी, they will float and the gang and the this ore will settle down. Clear? That is gravity separation process for the removal of the impurities. And for this process to be done, a specially designed table known as Wilfley table is used. Wilfley tables are used. Clear? For the concentration of this ore, gravity separation. This is also known as or leviation or hydraulic washing. क्लियर है, सिंपल सा है आपका, ठीक है. सो दिस इज ग्रेविटी सेपरेशन दैट डिपेंड्स अपॉन इफ impurities are lighter than ore. Clear? So what will happen? Ore will settle down at the bottom and impurities will float and you can separate it. Clear? So this is gravity separation. Next we are having the most important separation, that is second is froth flotation process. So what is froth flotation process? In this process, first of all, as we know, it is used to remove the impurities, and this process is applied
only for the separation of the impurities only from the sulfide ores of the metal. This is one of the mostly asked question and you should know about it, that froth flotation process. In entrance test you can also get this question. Froth flotation process is applied only to the sulfide ores of metal. Froth flotation is applied only to the सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल्स. ठीक है. सपोज सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल का मतलब है, सपोज वी हैव जिंक सल्फाइड, वी हैव जिंक कार्बोनेट, सपोज वी हैव लेड सल्फाइड, सपोज यू हैव कॉपर पायरेट Cu2S कॉपर सल्फाइड. सो S these are the sulfide ores. तो इसके लिए we will use froth flotation process for this and for this, for the sulfide ore. But if we are having zinc carbonate, for this we will not use froth flotation process, because froth flotation process is only used for the sulfide ore. This is the first point to be remembered in this process. Clear? And second is the principle of this process. What is the principle of froth flotation process? Principle of froth flotation process is that it is based on the properties of ore and the impurities. What type of impurities are present in it and what type of ore we have taken. Clear? The ore जो है, ठीक है, और सल्फाइड ओर्स दे आर वेटेड बाय द ऑयल एंड द इम्प्योरिटीज जो है दे आर वेटेड बाय द वाटर. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस. लेट अस टेक फॉर दिस आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम फॉर दिस. सपोज वी हैव टेकन अ कंटेनर. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट for me to make a video by taking a phone in one hand. Little bit of shaky. Suppose we have a container. Now in this container we have taken this ore. We have taken the ore plus we will add oil plus we will add some water plus we will add ore plus oil plus water. We will add some detergent. बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट में डिटर्जेंट हम ऐड करेंगे. ठीक है ना. ऑयल सच एज पाम ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल कैन बी एडेड in it, and then small amount of detergent only to form a froth. ठीक है. Then here a stirrer is there. I'm making like this. Stirrer is there. Now when this stirrer rotates, when this stirrer rotates, then what will happen? When this stirrer rotation starts, then the froth will be formed. Froth means झाग बनना स्टार्ट करेगा. ठीक है ना. तो जैसे ही झाग बनना स्टार्ट करेगा, स्टार्ट कैसे करेगा, झाग कैसे बनेगा? बिकॉज वी हैव एडेड डिटर्जेंट इन इट. क्लियर. तो जब झाग बनेगा तो झाग बनने के साथ क्या होगा, ये प्रॉपर्टी है इस ओर की कि जैसे ही झाग बनेगा तो जितना भी ओर प्रेजेंट होगा वो झाग में चला जाएगा ऊपर, और जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज मतलब गैंग और मैट्रिक्स जो है वो कहाँ चला जाएगा, सारा आपका पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे रह जाएगा, और जो आपका जितना भी ओर है वो आपका झाग के साथ ऊपर चला जाएगा. झाग देखा हुआ ना आपने. ठीक है. तो वैसे ही जैसे सपोज रोटेशन हुआ और ये आपका फ्रॉथ बन गया. फ्रॉथ मतलब झाग. ठीक है. दिस इज द फ्रॉथ. और फ्रॉथ के साथ क्या चला जाएगा आपका, फ्रॉथ के साथ हमारा क्या चला जाएगा, ओर.
ब्लैक डॉट से, दीज आर द ओर्स। ठीक है, और पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रॉथ में चले जाएंगे, झाग में चले जाएंगे, और जो आपके गैंग पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो वाटर के साथ रहेंगी। इसको मैं इम्प्योरिटीज कर देती। ठीक है, दिस इज ओर पार्टिकल, दिस इज गैंग और मैट्रिक्स। जी, गैंग एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या प्रिंसिपल है कि जो ओर पार्टिकल है दैट विल go along with the froth and go along with the froth, and this gang or impurities will remain in the water. Clear? Here two terms I'm going to add, that is, first one is froth stabilizer. Froth stabilizer. Froth stabilizer, and second one is collectors. Clear? अब फ्रॉथ स्टेबलाइजर टर्म से ही पता चल रहा है कि ये हम किस लिए ऐड करते हैं, टू स्टेबलाइज द फ्रॉथ। ऐसा ना हो कि फ्रॉथ बन गई और वाटर में ही चला जाए, वो फ्रॉथ सारा झाग उसमें मिक्स हो जाए। तो फ्रॉथ को स्टेबल करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। और इसके एग्जाम्पल जरूर आप लर्न कीजिए, क्योंकि ये आ जाता है पेपर में। जो आपका एनिलीन, एनसीईआरटी बुक में आपका ये दे रखा है, एनिलीन एंड क्रिसॉल, दीज आर यूज्ड एज फ्रॉथ स्टेबलाइजेशन, जो इस फ्रॉथ को स्टेबल करता है। जब फ्रॉथ स्टेबल होगी तभी हम उसको इजीली स्किम्ड ऑफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम कलेक्टर्स जो हैं वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर्स हमारे पास है, जैसे एग्जाम्पल अपने पास आ गया ज़ेंथेट। ठीक है, अब कलेक्टर्स का क्या रोल होता है? ठीक है, ये प्रिवेंट करता है द मिसिबिलिटी ऑफ अ फोम कंटेनिंग दिस सल्फाइड ओर्स एंड वाटर कंटेनिंग गैंग पार्टिकल्स। मतलब कलेक्टर्स जो हैं वो इस फ्रॉथ के साथ जो ओर्स हैं और जो पानी में नीचे ये इम्प्योरिटीज रह गए, इन दोनों को अलग रखने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कलेक्टर्स। कलेक्टर्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ फोम कंटेनिंग सल्फाइड और एंड द वाटर कंटेनिंग गैंग पार्टिकल। क्लियर? सो दिस इज द function of the this collector. Clear? Now what we have done in froth, first of all, froth flotation process is applied to the sulfide ores of the metals, and second, its principle is the ore particles will be wetted by the oil, and the this impurities will be wetted by the water। कि जो सल्फाइड ओर्स है वो आपका झाग में चला जाएगा, और झाग में कैसे जाएगा? जो हमने ऑयल डाला हुआ है, पाइन ऑयल, वो प्रिवेंट करेगा कि ये जो ओर्स हैं ये पानी के साथ ना मिले। वो ओर्स जो हैं वो क्या रहें, आपके झाग के साथ ही जाए। ठीक है, अब इसमें हम एक और नई टर्म जो है वो ऐड करते हैं, दैट इज डिप्रेसेंट। रोल ऑफ डिप्रेसेंट, very important. What is the role of adding depressant in froth flotation process? In froth flotation process में depressant का क्या रोल है? ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में डिप्रेसेंट का रोल ये है कि अगर सपोज हमारे पास कोई ओर है, उसमें जिंक सल्फाइड है, साथ में उसमें लेड सल्फाइड भी प्रेजेंट है, दोनों सल्फाइड और सल्फाइड प्रेजेंट है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होगा? हमें पता है सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो जो हमारा फ्रॉथ आएगा उसमें ये दोनों ही ओर्स जो हैं, दोनों ही चीजें, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, दोनों ही आपकी फ्रॉथ में आ जाएंगी, झाग में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम नहीं चाहते कि ये दोनों आए। हम सपोज हम चाहते हैं कि अपना लेड सल्फाइड हमारा उसके साथ आ जाए, फ्रॉथ के साथ। ठीक है,
तो क्या होगा, हम उसमें कुछ ऐसी चीज ऐड करेंगे जिससे कि हमारा जिंक सल्फाइड है वो क्या चला जाए, नीचे रह जाए, वाटर में रह जाए, और लेड सल्फाइड जो है वो आपका क्या चला जाए, ओर में विद फ्रॉथ चला जाए। ठीक है ना, क्योंकि ओर तो हमेशा क्या करेगा, फ्रॉथ में जाएगा, तो ये दोनों ही सल्फाइड हो रहे हैं, दोनों ही फ्रॉथ में चले जाएंगे। बट हमें दोनों में से हमें एक चाहिए, हमें लेड सल्फाइड चाहिए। तो हम कोई ऐसा रिएजेंट डालेंगे जिसमें ये जिंक सल्फाइड डिजॉल्व हो जाए और नीचे रह जाए। ठीक है ना, और वो जो अमाउंट जब हम ऐड करते हैं किसी सब्सटेंस का, ठीक है, जो कि क्या कर देता है, जो प्रिवेंट कर देता है किसी एक सल्फाइड की, जिसको हम नहीं चाहते, जिस सल्फाइड ओर को वो रोक देता है नीचे, फ्रॉथ में जाने से रोक देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट, कि उसने इसको डिप्रेस कर दिया। जैसे हमने जिंक सल्फेट को रोकना है कि ये फ्रॉथ में ना जाए, तो हम क्या करेंगे, जिंक सल्फेट में हम ऐड कर देंगे सोडियम साइनाइड, कि सोडियम साइनाइड विल एक्ट एज डिप्रेसेंट। ठीक है, सोडियम साइनाइड क्या बनेगा, डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और कोई कॉम्प्लेक्स बना देगा, जो कि क्या करेगा, वो आपका नीचे रह जाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, और वो फ्रॉथ के साथ आपका नहीं आएगा। तो अपने पास आ गया यहाँ पे जिंक सल्फाइड प्लस सोडियम साइनाइड, डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करेगा, तो ये बना देता है हमारा कॉम्प्लेक्स CN4 प्लस Na2S। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल मतलब ये फ्रॉथ के साथ नहीं जाएगा। अब जिंक सल्फाइड जो था हमारा वो नीचे रह गया, और हमारा जो फ्रॉथ है उसमें सिर्फ क्या जाएगा, आपका लेड सल्फाइड। सो दिस इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट। ठीक है, जो हमारा लेड सल्फाइड है वो सोडियम साइनाइड के साथ नहीं रिएक्ट करता, वो जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि सॉल्युबल है, तो ये फ्रॉथ में जाने से उसको रोक देगा। इस तरह से ये दोनों को हम रोक सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेसेंट। क्लियर है, ठीक है, दिस इज नोन एज डिप्रेसेंट। दिस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन नेक्स्ट वी विल नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन. It is the simplest method for the concentration of ore. Magnetic separation, as the name suggests, we will use it for the iron, ore of iron, because iron is attracted to the magnet, so it is applied to the ore of iron. Clear? For example, chromite ore. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इम्प्योरिटीज आपकी मतलब बिहेवियर जो है, ठीक है ना, वो आपका ऐसा हो कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, जैसे हमारे पास है क्रोमियम का ओर है, ठीक है, ओर ऑफ क्रोमियम, दैट इज मैग्नेटिक इन नेचर। तो हम क्या करेंगे, उसको मैग्नेटिक सेपरेशन से जो है उसको हम सेपरेट आउट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास एक रोलर होता है इस तरह से, इस पुली के ऊपर, ये हमारे पास है, ठीक है, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये है, ये, तो इसमें से हमने जो ओर है वो हमने डाल दिया, और ये एक बेल्ट है जो मूव होती रहती है, ऐसे ऐसे मूव होती चल रही है ये, ठीक है, इसकी ये मूवमेंट होती चल रही है, ऐसे कि मूव कर रही है, ठीक है, बेल्ट टाइप। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये ओर मूव करता चलेगा, ठीक है ना, और ये दो रोलर्स हैं, ये कैसे हैं बिहेवियर में, इन दो रोलर्स के बिहेवियर है मैग्नेटिक। ठीक है, तो जैसे ही ये ओर इन रोलर्स के ऊपर चलेगा तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है ओर में, ठीक है, ओर में के अंदर जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो इन रोलर की तरफ अट्रैक्ट होता चलेगा और यहाँ पे इकट्ठा होता चलेगा।
ठीक है। और क्या, जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ इकट्ठा होता चलेगा और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वहाँ वो यहाँ पे गिरते चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रोलर कैसे है, मैग्नेटिक इन नेचर है, तो इसलिए जो हमारे पास ओर है, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो वो इन रोलर के पास मूव होके यहाँ पे इकट्ठा होता चलेगा और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो आपके दूर दूर होते चलेंगे, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है लीचिंग। लीचिंग जो है, जो प्रोसेस हमारे पास है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, उसमें हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर है इन लीचिंग, ठीक है, लीचिंग में क्या होता है, जो इम्प्योर ओर होता है उसको हम ट्रीट करते हैं किसी ऐसे रिएजेंट के साथ, किसी एसिड के साथ, किसी बेस के साथ, कि जो ओर पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो इम्प्योरिटीज है दैट डज नॉट रिएक्ट। क्लियर? लीचिंग में क्या होगा हमारे पास, ओर पार्टिकल्स जो है दैट डिसॉल्व इन सम एसिड और बेस, किसी एसिड या बेस में ओर पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, बट इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स, बट द इम्प्योरिटीज जो हैं दैट डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, जैसे अगर हम लीचिंग करते हैं एल्यूमिना की फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, तो बॉक्साइट है हमारे पास Al2O3, इसमें इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो अगर हम इसको बॉक्साइट को एक्स अमाउंट ऑफ ये, ठीक है, दिस इज बॉक्साइट ओर ऑफ एल्यूमिना, इसमें से हमने इम्प्योरिटीज हटानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे या तो किसी एसिड में या तो किसी बेस में ऐड करेंगे जिसमें ये डिसॉल्व हो। तो अब हम इसको कर देते हैं NaOH में डिसॉल्व, तो क्या होगा, ये जो है आपका ओर वो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज हैं, बेसिकली इम्प्योरिटीज क्या होती है हमारे पास, सिलिका की इम्प्योरिटी होती है मेन, किसी किसी में, जैसे इसमें हमारे पास बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज चलती है, हमारे पास इम्प्योरिटीज हमारे पास चलती हैं यहाँ पर सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, अपने पास होगी आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होगी, और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होगी। ठीक है, तो इन इम्प्योरिटीज को हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएंगी आपकी डू नॉट डिसॉल्व इन NaOH, पर जो ओर होगा, जितना भी ओर होगा वो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इम्प्योरिटीज जो है उनको रिमूव करते हैं विद दिस लीचिंग। और आगे हम डिस्कस करेंगे लीचिंग को। लीचिंग जो है वो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर के लिए भी यूज होती है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं आपका लीचिंग। ठीक है, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।